Hello friends, all of you are welcome on Learn Neat IIT JEE with Babita. So today I'm back with another lesson of biology, that is biological classification. So the video is going to be the part 1 of biological classification. It's been a long time since I'm away from this channel because of some important issues, but I'm back. And I'm sure we'll complete the syllabus very soon, of biology at least. And after biology, I'm going to focus on physics and chemistry. I'm sure this is going to help in NEET and IIT JEE, for I'm providing you the notes of competition section. So all of you are asked to please support. Let's start. So guys, this is our chapter 2, biological classification. So the one who was earliest to attempt the scientific basis of classification or biological classification of living organisms, he was Aristotle. He classified all of the living organisms into two parts, plants and animals. Plants, on the basis of morphological characters such as height, were distributed into herbs, shrubs and trees. Whereas animals, on the basis of presence and absence of red blood or RBCs, were distributed into anemia and anemia. Anemia refers to the animals without RBCs, and anemia refers to the ones with RBCs. Then came the kingdom system of classification. So the first to come was the two kingdom system of classification. It was the first formal system. Aristotle had formed a system which was quite informal, kind of disorganized sort of, but because they are also organisms other than plants and animals, means the ones which can't be decided to be put in plants and animals, either of them. So for them, then came the Linnaeus. He just discovered he gave the two kingdom classification system. So Carolus Linnaeus divided the life forms into two kingdoms. First of all was Plantae, and second was Animalia. Now he had some basic characters, some features through which he could criterions through which he could just sort out whether the organism to be put in plant or whether the organism to be put under animal. So let's see what were those features. Come on. Now according to the two kingdom classification system, we have the life forms divided into Plantae and Animalia. So as we guys can see, the major criterion for division was the presence or absence of cell wall. The ones which had cell wall were put under kingdom Plantae, and the ones which didn't have cell wall were put under kingdom Animalia. Then we have the mode of nutrition. So the Animalia kingdom organisms had heterotrophic mode of nutrition, whereas the ones under Plantae kingdom were autotrophic. Then we had locomotion. So animals, there's a difference between, first of all, before telling you about which had to be put into locomotion and which didn't have to be, let me tell you that there's a difference between locomotion and movement. जो हमारा locomotion and movement chapter है, उसमें हमें ये difference अच्छे से मालूम पड़ जाएगा. Guys, locomotion basically refers to displacement. Displacement means change in position. Movement तो हिलना डुलना, हाथ पैर हिलाना. आप सोते हुए भी मूवमेंट करते हैं, हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, ये सब मूवमेंट होता है. बाकी लोकोमोशन जैसे आप चल के जाते हैं, या फिर वैसे तो कहने को तो जैसे हम कार में बैठकर जा रहे हैं, वो भी किसी बेसिस पर हमारा लोकोमोशन होगा. बट अकॉर्डिंग टू द एरिया वी आर सिटिंग इन, मीन्स द सीट ऑफ द कार, हम लोकोमोशन नहीं कर रहे होते, उसमें ड्राइवर लोकोमोशन कर रहा होता है कार को चलाते टाइम. तो मीन्स ड्राइवर मूवमेंट कर रहा होता है, लोकोमोशन तो कार ही कर रही होती है. तो जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट कर जाते हैं. वैसे प्लांट्स का कभी देखा है? प्लांट्स अपनी जड़ें समेट कर चले जा रहे हैं. भाई मैंने तो आज तक नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा होगा. देखा होगा तो ज़रूर बताना. अब रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो अबाउट टच मी नॉट प्लांट, राइट? तो जो टच मी नॉट प्लांट है उसके वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है प्लांट्स का एज अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस.
या फिर जब तेज़ धूप होती है तो प्लांट्स का मुरझा जाना, बारिश के मौसम में प्लांट का खिला खिला रहना, लाइट की तरफ उनकी मूवमेंट, ये सब रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस है। ये एनिमल्स में थोड़ा फास्ट होता है जबकि प्लांट्स में थोड़ा सा स्लो होता है। अब आती बात कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम की। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम जो होता है ये आप पढ़ेंगे हमारे स्केलेटल सिस्टम वाले पार्ट में, या फिर कहूँ तो हमारे ज़ूलॉजी के पोर्शन में आएगा चैप्टर, बहुत जल्द हो जाएगा। सो उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम है वो माइक्रोफिलामेंट्स से बना हुआ है। और माइक्रोफिलामेंट्स आर इन्वॉल्व इन एनिमल साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीज़न में माइक्रोफिलामेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन में, राइट। तो जो एक्टिन एंड मायोसिन है उनसे बना होता है कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, मीन्स उनसे बने होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, एंड माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स से कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम बनता है। तो एनिमल्स में तो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट्स में एब्सेंट होता है। अब जो बेसिक एग्जांपल्स जो हम इसमें डालने वाले हैं प्लांट्स में, वी हैव बैक्टीरिया, वी हैव BCA ब्लू ग्रीन एल्गे, देन वी हैव द एल्गे, then we have the fungi, then we have bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms, ये सब हमारे प्लांट किंगडम के अंदर आते हैं। then we have the kingdom animalia, उसमें एग्जांपल्स होंगे वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, प्रोटोजोआन्स। प्रोटोजोआन्स में आते हैं अमीबा एंड पेरामीशियम जो कि एनिमेलिया के अंदर में आते हैं। देखिए मैंने ये नोट्स आपके लिए एकदम प्रिपेयर फुल फ्लेज प्रिपरेशन के साथ बनाए हैं। सो नीट में जो आएगा उससे एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा बेशक हो, कम नहीं होने वाला है। So watch till the end, that's gonna help you a lot। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वीडियोस बहुत कम बनाई जाती हैं, बट मैंने नोट्स प्रिपेयर करे हैं बहुत तैयारी के साथ, एकदम अरेंज्ड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, और आपका एक भी पॉइंट ना छूट जाए इसलिए मैंने पहले से नोट्स प्रिपेयर करके रखे। दिस इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अब हम देख रहे हैं कि जो प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उनमें तो ये बेसिक 5 क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग ही चूज़ किया, डिसाइड किया जाता है कि वो प्लांटे में जाएगा या एनिमेलिया। क्या होगा अगर एक कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग तो प्लांटे में जा रहा हो और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग एनिमेलिया में, फिर कैसे डिसाइड करेंगे ये लोग? सो देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ बेटर सिस्टम। तो क्योंकि ये फर्स्ट सिस्टम था तो इसके डिमेरिट्स तो पक्का होंगे। आज तक पहली बार कोई इंसान कोई काम करता है और उसमें कमियां ना निकले, इट्स इम्पॉसिबल। तो फिर लाइफ फॉर्म्स जो होती हैं इनमें डिस्टिंग्विश थोड़ा सा कम हो पाया था। ये 3 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने A, B and C, जिसके अकॉर्डिंग ये बताया है कि ये डिमेरिट्स थे। लाइक वी हैव देयर वाज नो डिस्टिंग्विशन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, मतलब किंगडम प्लांटे में भी प्रोकैरियोट्स आ रहे थे और यूकैरियोट्स भी, और किंगडम एनिमेलिया में भी प्रोकैरियोट्स आ रहे थे और यूकैरियोट्स भी। बैक्टीरिया और एल्गे, बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक एंड एल्गे इज यूकैरियोटिक, जबकि दोनों ही प्लांटे किंगडम में जा रहे थे। देन वी हैव द मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो वी हैव क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा, ये दोनों ही एल्गे हैं, राइट। तो क्लेमाइडोमोनास इज यूनिसेलुलर वेयरएज स्पाइरोगाइरा इज मल्टीसेलुलर, जबकि इन दोनों को इसने एक ही में डाला गया था प्लांट में। देन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। तो जो हायर प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, फंजाई होती है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। तो उन दोनों को भी सेम किंगडम में डाला गया था प्लांटे में। फिर और ऑर्गेनिजम्स की बात आई जिनकी डाउटफुल पोजीशनिंग थी, तो यूग्लेना, जो यूग्लेना होता है उसकी सेल वॉल एब्सेंट होती है तो एनिमल्स में जाना चाहिए, और उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो प्लांट्स में जाना चाहिए। सो इट हैड रियली डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर ऑफ अरेंजिंग। उसके बाद स्लाइम मोल्स है हमारा, तो इनकी जो मेन बॉडी होती है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है तो एनिमेलिया में जाना चाहिए। जबकि जो स्पॉर्स होते हैं स्लाइम मोल्स के उनमें सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो वो प्लांटे में जाना चाहिए। बट इधर तो इन दोनों को डाउटफुल पोजीशनिंग मिली हुई है। भाई देखो एक चीज़, आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो आपको चॉकलेट मिलेगी या तो आपको आइसक्रीम मिलेगी। अब आप कहेंगे हमें तो दोनों चाहिए, कौन देगा? नहीं ना,
वो एक डाउटफुल सिचुएशन हो जाती है। पेरेंट्स, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे पेरेंट्स लोग सोचते थे जब हम दोनों चीज़ें एक साथ मांगते थे कौन सी दें, दैट वे। तो हमारे पास भी एक दो चॉइसेस होती हैं, इट्स डिफिकल्ट टू डिसाइड बिटवीन प्लांटी एंड एनिमेलिया फॉर अ सर्टेन लाइफ फॉर्म और सर्टेन ऑर्गेनिज्म, सो दैट्स गोना बी रियली हार्ड टू डिसाइड। तो ये इसके डिमेरिट्स थी। जबकि जो हमारा मेजर क्राइटेरिया था दैट वाज सेल वॉल। तो इधर यूग्लेना में तो हम देख सकते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट एब्सेंट है तो एनिमल्स में ही जाएगा। यूग्लेना है भी एनिमल्स में अकॉर्डिंग टू द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। पर स्लाइमोल्स में क्या, वहाँ पर तो एक जगह एब्सेंट है और एक जगह प्रेजेंट है। सो दैट इज गोना बी दैट्स रियली क्रिएटिंग अ डाउटफुल सिचुएशन। तो इसलिए ये किंगडम, ये जो क्लासिफिकेशन है ये फ्लॉप हो गया, फ्लॉप, नुकसान हो गया। अब उसके बाद हमारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ रहा है। नाउ दैट वी हैव सीन द डिमेरिट्स ऑफ द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, हम देख पाए वी हैव सीन दैट जो लीनियस ने किया वो एरिस्टोटल की गलती को सुधार नहीं पाया। एरिस्टोटल ने प्लांट्स और एनिमल्स को तो सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था कम से कम। अब लीनियस तो बेचारा वो भी नहीं कर पाया, बट इज्जत तो हमें उसे देनी पड़ेगी क्योंकि उसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कवर किया था। उसके बाद लीनियस भाई की इज्जत बचाने आते हैं हैकल साहब, अर्नेस्ट हैकल। उन्होंने एक और किंगडम दिया, प्रोटिस्टा। अब जो प्रोटिस्टा किंगडम था उसके अकॉर्डिंग जो हमारे प्लांटे और एनिमेलिया थे इसमें सारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आने वाले थे, और जो प्रोटिस्टा थे इसमें सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आने वाले थे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती, ये जस्ट मेंशंस द एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन, द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड थोड़ा सा अबाउट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। बट क्योंकि हम लोगों को सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स नहीं देने, हम लोगों को नीट पे क्लियर करना है, हम लोगों को डॉक्टर भी बनना है, इसलिए ये सब तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो जो 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटिस्टा है वो होगा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे सारे किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर में। वी हैव बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गे, यूनिसेल्युलर एगे। उसके बाद यूनिसेल्युलर फंजाई जो कि जैसे हमारी ईस्ट होती है, एंड एक्वेटिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये गलती कर दी हमारे हैकल साहब ने, बोल रहा था कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है सारे, अभी एक्वेटिक मल्टीसेल्युलर कहाँ से आ गए ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन आए तो आए। अब सिस्टम उसका था तो रूल्स भी उसी के होंगे, हम तो चेंज कर नहीं सकते, तो पढ़ना पड़ेगा। इट्स इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा जा सकता है कि प्रोटिस्टा में कौन से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडेड हैं। देन वी आर जस्ट गोना से इज एक्वेटिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब हमारे पास प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम होंगे, तो जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे प्लांटे और एनिमेलिया में आते हैं, वो बराबर बराबर बांट करके, वो जो लीनियस भाई साहब ने 5 क्राइटेरियन दिए थे उनके हिसाब से। और ये जो हमारा स्पाइरोगाइरा है ये एल्गी है, लेकिन ये मल्टीसेल्युलर है तो इसे इधर डाला गया है, और जो कुछ मल्टीसेल्युलर फंजाई होते हैं वो भी इधर ही डाले गए हैं। तो ये बात थी असल में। तो लीनियस भाई साहब की एक प्रॉब्लम तो सोल्व होगी, वो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर वाली। अब इतना इफेक्टिव तो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी नहीं रहा। एक तो ये पॉइंट एक्सेप्शन, और ये स्पाइरोगाइरा एल्गे है, एल्गे तो इधर आना था, ये फंजाई मल्टीसेल्युलर, लेकिन फंजाई तो इधर भी है। तो एक काइंड ऑफ डिसऑर्डरनेस तो इसने भी क्रिएट करी। पर जैसे पीरियोडिक टेबल में डॉबर्नियर के बाद न्यूलैंड आया था वो काम इन्होंने भी किया, ये लीनियस के बाद हमारे हैकल साहब आए थे। उसके बाद हमारा आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, फेल नहीं हुआ, फ्लॉप भी नहीं हुआ, लेकिन इफेक्टिव नहीं रहा। टेस्ला नई गाड़ी का मॉडल लॉन्च करेगी तो पुरानी गाड़ी तो कम इफेक्टिव हो जाएगी ना, और कई बार तो फ्लॉप भी हो जाती है, राइट। तो हम उसे फ्लॉप नहीं कह सकेंगे इस किंगडम को, लेकिन जो अपना रुतबा ना बना पाए वो सब फ्लॉप ही होते, राइट। तो हम इंडियंस का ही मानना है। तो फिर इधर जो हमारा है ये हैकल जी, इनकी कमी पूरी करी कॉपलैंड साहब ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दे करके। तो ये आ गए हमारे कॉपलैंड भैया, इन्होंने कहा हैकल तूने लीनियस की प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, अब मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। इसने एक मोनेरा नाम का और किंगडम इंक्लूड कर दिया। अब भाई किंगडम पे किंगडम इंक्लूड होते जा रहे हैं, मतलब टेस्ला की नई गाड़ी में एक फीचर और ऐड हो गया, ये समझ लीजिए। जो प्लांटे और एनिमेलिया थे
उसमें मल्टीसेल्युलर यूकेरियोट्स थे सारे। प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स थे, मतलब यूकेरियोट्स सारे या तो प्रोटिस्टा में थे, या तो प्लांटे में थे, या तो एनिमेलिया में थे, और सारे प्रोकैरियोट्स मोनेरा में। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गे, सब मोनेरा में। तो जो हमारी फुंजाई थी ये नॉन फोटोसिंथेटिक थी, इसे प्लांटे में डाला गया था। फिर से दिक्कत, भाई साहब ये क्या हो रहा है, टेस्ला नई नई फीचर्स डाल के गाड़ी डाल रही है और टेस्ला की गाड़ी फ्लॉप हो रही। सोचो टेस्ला की गाड़ी। तो जो हमारा मोनेरा था, इससे आने के बाद हमारी यूकेरियोटिक की और प्रोकैरियोटिक की समस्या भी काफी हद तक सॉल्व हो गई है। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं हमारे विटेकर साहब, हर मर्ज की एक दवा, RH विटेकर इन 1969। तो इन्होंने लाइफ फॉर्म्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, मतलब मोनेरा, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, इन सब में भी एक किंगडम और ऐड कर दिया। कौन सा किंगडम? ये जो पिंक वालों के बीच में ग्रीन में लिखा है ना, किंगडम फंजाई, ये हमारे विटेकर साहब लेकर आए थे और ये अब तक का सबसे इफेक्टिव सिस्टम रहा है। तो इसके बेसिस, हमने लीनियर्स के बेसिस पढ़े थे, अब इसके बेसिस ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी का एकदम लाइमलाइट कॉन्सेप्ट है ये रखा लीजिए इस चैप्टर में। एनसीईआरटी सबसे ज्यादा अगर इस चैप्टर में किसी बात पर फोकस करती है तो वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय RH विटेकर। इस पे सबसे ज्यादा फोकस करती है एनसीईआरटी हमारी। अगर एनसीईआरटी फोकस करती है तो नीट भी करेगा कि नहीं? करेगा, जरूर करेगा। तो हमारा जो सेल टाइप है, इसकी जो बेसिस है वो 1, 2, 3, 4 एंड 5 है टोटल। तो हमारा जो सेल टाइप है वो होगा प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल के बेसिस पे डिवाइड करेगा। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक वाली खत्म समस्या। उसके बाद आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर, मतलब यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर वाली प्रॉब्लम भी फिनिश। अब आता है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये जो हमारा, जैसे उधर सेल वॉल मेन क्राइटेरियन थी, इधर ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये मेन क्राइटेरियन है। अब आप कहेंगे कि मैक्सिमम एम्फोसिस क्या लिखा है मैंने, तो ये नीट का PYQ रह चुका है, ईयर मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें लिखा था कि मैक्सिमम एम्फोसिस इज गिवन टू विच क्राइटेरियन इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एग्जैक्ट स्टेटमेंट बोल रही हूँ। Maximum emphasis is given to which criterion in 5 kingdom classification system? तो उसका आंसर आएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक या फिर नॉन फोटोसिंथेटिक, मतलब ऑटोट्रोपिक या फिर हिट्रोट्रोपिक। मैंने लिख दिया है, ये PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैक्सिमम एम्फेसिस वाज गिवन टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद आती है हमारी रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये इंटरनल क्लासिफिकेशन के काम आती है, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, किंगडम्स के अंदर भी जो और क्लासिफिकेशंस होती हैं उनके काम आती है हमारी इंटरनल क्लासिफिकेशन। सो इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट्स नॉट बिन अ PYQ बट इट कैन बी। अब हमारा आता है फाइलोजेनिक रिलेशनशिप्स। ये हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? ये हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप्स, राइट, टैक्सोनॉमी वगैरह में। अब हम एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एम्फोसिस दिया गया है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है, एक तो ऑटोट्रोपिक में और दूसरा हिट्रोट्रोपिक में। जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है, और जो हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हिट्रोट्रॉफ्स बोला जाता है। देखो मेरी राइटिंग तो मोती जैसी खूबसूरत तो नहीं है, बट मुझे विश्वास है आपको समझ आ रही होगी, आनी भी चाहिए, इतनी भी गंदी नहीं है बाय द वे। तो ये हमारा है। जो हिट्रोट्रॉपिक होते हैं वो स्पून फीडिंग में बिलीव करते हैं कि बना बनाया मिले, रेडीमेड एकदम फटाफट आउटसाइड सोर्स से। मतलब हिट्रोट्रॉपिक की जो मम्मी है वो बाहर से खाना मंगाती है, उसे खाना बनाने का शौक नहीं है, वो बाहर से मंगाती है। अब बाहर से मंगाएगी तो लेना पड़ेगा, रेडीमेड मिलेगा, राइट। मेहनत तो करनी नहीं पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी उसे पचाने में। हराम की चीज पचती तो नहीं है खैर आराम से, लेकिन खाना बनाना नहीं पड़ेगा। दैट्स अ गुड पॉइंट अबाउट हिट्रोट्रॉप्स। अब जो हमारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक मैटर से सिंथेसाइज करते हैं। इनऑर्गेनिक मैटर मतलब
इनऑर्गेनिक मैटर मतलब सनलाइट, मतलब वाटर, मतलब मिनरल्स, मतलब CO2। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जो एटीपी प्रोडक्शन वो करते हैं, जो स्टार्च, जो सेलुलोज, किसी की भी फॉर्म में वो फूड प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उनको बोला जाता है इनऑर्गेनिक मैटर, जो कि ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से सिंथेसाइज होती है। अब ये जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इससे बनते हैं दो टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें बोला जाता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, और जो कीमोसिंथेसिस करते हैं उन्हें बोला जाता है कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो जो लाइट एनर्जी से करते हैं वो होते हैं फोटोसिंथेटिक, और जो केमिकल एनर्जी से करते हैं वो होते हैं कीमोसिंथेटिक। यू शुड बी रिमेम्बरिंग 10th क्लास में आपने ये बहुत बखूबी अच्छे तरीके से पढ़ा था, राइट? तो न्यूट्रिशन जो ये टेबल जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो चार्ट दिखा रही हूँ, ये काफी आपके लिए जाना पहचाना होना चाहिए। अगर नहीं है तो अब हो गया है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू सी, बट ये आपका जाना पहचाना होना चाहिए था, क्योंकि 10th में आपने ये जरूर पढ़ा होगा। CBSE वालों ने पढ़ा होगा, आई डोंट नो अबाउट अदर बोर्ड्स बिकॉज आई एम फ्रॉम CBSE, बट CBSE वालों ने ये पढ़ा था। अब जो फोटोसिंथेटिक लाइट एनर्जी से फूड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें बोला जाता है फोटो ऑटोट्रोफ्स। जो कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल एनर्जी से जो फूड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें बोला जाता है कीमो ऑटोट्रोफ्स। मेरी प्रेजेंटेशन बेशक वाहियात हो, बहुत गंदी हो, लेकिन एक ऐसे तरीके में ऑर्गेनाइज किया है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा। तो अब हमारे पास आता है हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक हो गया पूरा, ऑटोट्रोपिक के दो ही पार्ट्स थे, एक तो लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी, वो हो गया। अब हम हेट्रोट्रोपिक पे आते हैं। तो हेट्रोट्रोपिक 4 है, 2 के डबल 4। तो सबसे पहले सेप्रोफाइटिक, ये जो येलो में ये आपको नहीं दिख रहा है, ये मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। गलती से लिखा गया है येलो पेन से, बट डजंट मैटर, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। तो जो सेप्रोफाइटिक होते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और इनका एक न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्प्टिव फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन होती है। ये उनसे डेड ऑर्गेनिक मैटर से होता है जो उसको डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और उसके भीतर के सारे न्यूट्रिएंट्स चूस लेते हैं। पैरासाइटिक तो जो होते हैं ये तो जिंदा इंसानों का खून चूसने वालों में से होते हैं, पैरासाइट्स। जैसे आपके सर में जुएं पड़ आपके में तो नहीं पड़ जाती होंगी जैसे, पर जैसे लोगों के सर में जुएं पड़ जाती हैं, या फिर एनिमल्स की बॉडीज पर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आई डोंट नो देयर नेम बाय द वे, आई एम नॉट वेरी फेमिलियर टू दोस सॉर्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बट हमने देखा है लाइसेस होती हैं, लीचेस होती हैं डॉग्स वगैरह पे, तो वो पैरासिटिक होती हैं। वो जिंदा लोगों का खून चूसने में बिलीव करते हैं। मच्छर पैरासाइट नहीं है, बट बहुत सारे होते हैं लाइक लीसिस, आई डोंट नो देयर परफेक्ट नेम्स, यू शुड बी नोइंग। अब जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें इंजेक्शन होती है। हम ह्यूमन बींग्स होलोजोइक हम हाथ में उठाते हैं और मुंह में ले जाते हैं। भैंस गाय होते हैं वो भी होलोजोइक होते हैं, वो हाथ में उठाकर तो मुंह में नहीं ले जाती, लेकिन वो एक सर्टेन स्ट्रक्चर होता है, उससे ही अपने फूड को अंदर लेके जाते हैं और फिर अंदर हमारा होता है डाइजेशन वगैरह। अब जो हमारा सिम्बायोटिक होता है उसमें जो प्लस प्लस एसोसिएशन बोला जाता है, इसे A+B+, मतलब एक एल्गे, ए से एल्गे ले लीजिए, एफ से फंजाई, क्योंकि इधर लाइकन का एग्जाम्पल लिखा है मैंने, तो बी से फंजाई ले लीजिए। इन दोनों की बेनिफिट हो रहा है, म्यूचुअली बेनिफिटिंग एसोसिएशन इसे बोला जाता है, जिसमें दोनों ही का फायदा होता है। तो ऐसी डील तो भला दुनिया की सबसे अच्छी डील होगी ना, तो सिम्बायोटिक सबसे अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि दोनों बेनिफिट हो रहे हैं। होलोजोइक में हम फूड इंजेस्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है हम किस तरीके का फूड इंजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे जिस फूड को हम इंजेस्ट करते हैं उसको कोई फायदा नहीं होता है। जो पैरासिटिक है इसमें तो होस्ट का खून चूसना, भाई ये तो बहुत ही गंदी बात है, ये तो बिल्कुल भी प्लस माइनस होगा, ये तो पक्का ही। और जो सेप्रोफिटिक है इसमें कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। जो डेड हो चुका है, जो मर चुका है, उसको क्या अंतर पड़ता है, चाहे उसके न्यूट्रिएंट्स ऐसे ही उड़े चाहे फिर उन्हें कोई चूसे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो सिम्बायोटिक है ये सबसे अच्छा है, इसमें दोनों को फर्क पड़ता है, दोनों को फायदा भी होता है। कितनी बढ़िया डील है ना। तो सिम्बायोटिक सबसे अच्छा एसोसिएशन होता है, प्लस प्लस एसोसिएशन जिसे बोला जाता है। ये नीट में पूछा जा सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि प्लस प्लस एसोसिएशन कौन सा होता है, तो वो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आपको एक
मज़ेदार पॉइंट बताऊं तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ अगर प्लस प्लस एसोसिएशन भी लिखते हैं हम डेफिनेशन के साथ, तो ये एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का बहुत अच्छा तरीका है जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात आती है। इसमें हमारा भी फायदा होता है और एग्जामिनर का भी। तो अब हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये यहाँ फिनिश हो रहे हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ हम 5 किंगडम सिस्टम के मेरिट्स और डिमेरिट्स देखकर जल्दी से इस वीडियो को एंड करने वाले हैं, क्योंकि इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। परहैप्स ऑन सैटरडे या संडे तक आ जाएगा, इस वीक में पक्का आ जाएगा 5 किंगडम सिस्टम का दूसरा पार्ट, जिसमें मैं कोशिश करूंगी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं भी हो पाया तो थर्ड पार्ट में तो पक्का ही हो जाएगा। तो ये जो मैरिज होते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के, ये हैं कुछ, मतलब एक अलग से डिस्टिंक्शन था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में। आप जरा सोचिए, लिनियस ने 2 किंगडम दिया, उसमें एक और ऐड करके हैकल ने 3 किंगडम दिया, एक और ऐड करके कोपलैंड ने 4 किंगडम, विटेकर ने सब में एक और ऐड किया और 5 किंगडम दे दिया। सबका फायदा हुआ और उसका नाम भी हुआ, है ना। इसे बोलते हैं शान पट्टी, जो कि हमारे विटेकर साहब ने दिखाई। कई लोगों को लगता होगा कि अच्छा है भाई, एक एक कला होती है, एक हुनर होता है, टैलेंट होता है किसी और की चीज़ को चीट करके अपना नाम कमाना। वो विटेकर ने किया। मतलब इन्होंने हर एक लेवल पे, कहते हैं कि डेवलपमेंट्स एक लेवल से दूसरे लेवल पर होते हैं, हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। अगर एक इंसान को सारी दुनिया की डेवलपमेंट्स करनी हो तो दैट्स गोना बी अ रियली ग्रेट टास्क, और इम्पॉसिबल है एक सॉर्ट ऑफ। तो जो हमारा ये जो है, इसमें क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, इन दोनों को एल्गे में, प्लांटे में, इनमें सेलुलोज प्रेजेंट होती, इन्हें प्लांटे में डाला गया, एल्गे में। देन वी हैव अमीबा एंड पैरामीशियम, यूग्लेना एंड स्लाइम मोल्ड, इन सबको प्रोटिस्टा में डाला गया है। यूग्लेना और स्लाइम मोल्ड को प्रोटिस्टा में, और अमीबा और पैरामीशियम को एनिमेलियम, क्योंकि इनकी सेलुलोज एब्सेंट होती है इसलिए। तो इन्हीं के ऊपर पूरी अब तक की भाषणबाजी चल रही थी 4 किंगडम में। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो ये है, इसने फंजाई को प्लांटे से अलग किया। जरा सोचिए कितना अच्छा था ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि फंजाई में हिट्रोट्रोपिक भी होता है और ऑटोट्रोपिक भी, मतलब फंजाई में हिट्रोट्रोपिक होता है और प्लांट्स में ऑटोट्रोपिक होते हैं। जो सेल वॉल होती है वो फंजाई में काइटिन की बनी होती है और प्लांट्स में सेलुलोज की। तो ये एक डिफ्रेंसिएशन किया अच्छे से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब दुनिया की तो आदत है भाई, एक चीज अच्छी बनी हो चाहे बुरी, कमी तो हर एक चीज में निकालनी होती है, और इसमें भी कमी तो निकलेगी, क्योंकि साइंस है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, क्योंकि डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि डिस्कवरीज। तो एक के बाद एक अच्छी तो आएंगी। टेस्ला एक के बाद एक अच्छा मॉडल निकालेगी, और जरूर निकालेगी, राइट। तो यही हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसके डिमेरिट्स और देकर जल्दी से वीडियो को एंड करते हैं। तो ये आ गए 5 किंगडम सिस्टम के डिमेरिट्स। तो इसमें लाइकन्स और वायरसेस होते हैं, इनको कोई पोजीशन ही नहीं दी गई। अरे लाइकन्स तो सिम्बायोटिक हैं, उनमें एल्गे भी है, फंजाई भी, उन्हें कहाँ रखें? और वायरसेस तो पता ही नहीं चल रहा लिविंग है या नॉन लिविंग, उनको कहाँ रखें? ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब जो एल्गे है उसे मोनेरा में डाला, बीजी जो ब्लू ग्रीन एल्गे है या फिर जो साइनोबैक्टीरिया उसे मोनेरा में डाला, और क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास इन दोनों को प्रोटिस्टा में डाला, और जो हायर एल्गे है उनको प्लांटे में। मतलब एक एल्गे को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इन लोगों ने, 3 किंगडम्स में। तो ये भी एक डिमेरिट है, अलग अलग नहीं करना चाहिए था। ये तो वही बात होगी ना, जैसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं मिल रही, यही वाला सिस्टम है। मैं बार बार इसे पीरियोडिक टेबल से क्यों कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे टीचर ने इसे पीरियोडिक टेबल से कंपेयर करके पढ़ाया था, और पीरियोडिक टेबल से अगर हम इसे कंपेयर करके पढ़ रहे होते हैं तो हमें अच्छे से याद हो जाता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल हमने कहाँ कहाँ नहीं पढ़ा, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, और फिर उसके बाद अभी इधर 11th में भी पढ़ रहे हैं, तो ये हमें अच्छे से याद है, तो उसके सारे ये भी याद हो जाएगा इसलिए। तो अब हमारा जो किंगडम मोनेरा है उसमें एक दूसरे से अलग लाइफ फॉर्म्स थी, एक यू बैक्टीरिया और एक आर्के बैक्टीरिया। ये क्या है, कैसे हैं, किसने कैसे डिस्कवर किया है, ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए